On 138, sum number 5. Analysis of 12th standard students of a school is as under. देखो pass with distinction. तुम जैसे 15% of the total students pass without distinction. 75% of the total students, और तुम बिल्कुल इसमें नहीं हो, fail 10% of the students. Now for passing the examination, minimum देखो कितने मार्क्स चाहिए? For passing the examination, minimum देखो कितने मार्क्स चाहिए? 40% in order to pass the examination. And for distinction, minimum कितने चाहिए? Distinction के लिए 80% marks are required. If the percentage of results of a students follows a normal distribution, find out mean and standard deviation. And देखो एक और सवाल उन्होंने पूछा है, वो later on हम solve करेंगे, लेकिन वापस यहाँ पर हमको क्या find out करना है? mean और standard deviation. Now if you remember yesterday's lecture, अगर मुझे mean और standard deviation दोनों अगर find out करना है, तो you remember हम वो दो equation बनाते थे, and दो equation को फिर elimination method use करके फिर हमने mu and sigma find out किया था. यहाँ पर भी बेटा सेम चीज करनी पड़ेगी. तो सब मेरे साथ साथ ही शुरू कर दो. चलो मेरे साथ साथ ही शुरू कर दो. लिखना स्टार्ट करेंगे. पास विथ डिस्टिंक्शन. पास विथ डिस्टिंक्शन इज 15%. पास विदाउट डिस्टिंक्शन. Pass without distinction is 75%, and FAIL 10% of the students. Now, first information क्या दिया है जरा चेक करो. First, for passing the examination, we need कितना? 40% of the total marks. For passing the examination, we need 40% of the total marks. अब बेटा use your common sense. तुम 12th standard में हो, तुम्हारे कितने मार्क का पेपर बनेगा? 100 मार्क का पेपर बनेगा. अब अगर 100 मार्क का पेपर बन रहा है, तुम्हें कितने चाहिए? So can I write from 100 marks if I say 40%? तो तुम्हें 40 marks चाहिए to pass the examination, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. तुम्हें कितने marks चाहिए? 40 marks चाहिए to pass the examination. तो ये जो मैंने 40 marks find out करा, ध्यान से, that is my x. क्योंकि अगर मुझे दो इक्वेशन बनाने हैं तो मेरे पास x का होना बहुत जरूरी है, तो ही वो दो इक्वेशन बन पाएंगे. तो 40 marks is my x. 40 marks is my x. अब ऐसे कितने बच्चों को ये 40 marks भी नहीं मिले? क्या से 10% of the students could not even score 40 marks. तो એવું લખી શકું છું, there are 10% students failing to score 40 marks. तो ये 10% से बेटा मेरे को मेरा probability मिल जाएगा. So probability of 10% is 10 by 100, which is 0.1000. Graphical presentation अगर मैं करूं, बेटा just use your common sense. ये लोग फेल हुए हैं, left side. Very good. The Z1 will be coming on to the left side. They have failed. So ये वाला shaded area है मेरा 0.1000. Now but tell me one thing, if I want to get the value of Z1, do I need to refer this 1000? No. I want area
from 0 to Z1. I want area from 0 to Z1. So 0 से Z1 का एरिया मिलेगा कैसे? 0.5 minus 0.1 that is 0.400. बेटा इसको बहुत बार रेफर कर लिया हमने. छराई टाइम पास ना જોઈએ, બધાને તો आंसर મોડે હોવો જોઈએ. 1.28. So खाली इंग्लिश में से कहानी लिख दो. Refer 0.4000 in the area table in reverse manner. So 4000 को अगर रिवर्स मैनर में देखेंगे तो Z1 का आंसर कितना आ रहा है? माइनस 1.28. So Z1 is x minus mu upon sigma minus 1.28. x कितना है बेटा उसका? 40. mu don't know, sigma don't know. So minus 1.28 sigma is equal to 40 minus mu. Can I say mu will come this side? So mu minus 1.28 sigma is equal to 40. That's my first equation. बेटा ये वाला पता चला. हमने x कैसे फाइंड आउट किया वो पता चला. We assumed कि it will be a 100 mark paper and I need 40% to pass. So मैंने 40 marks ढूंढे लेकिन कुछ बच्चे फेल हुए हैं तो उन्होंने कहे तो 40 marks भी स्कोर नहीं कर पाए, जिस पर से मैंने अपना ग्राफ बना लिया. आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो. क्या बोल रहे हैं? डिस्टिंक्शन लाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? लिखा जाए. To get distinction 80% is required. To get distinction 80% is required. So वापस 100 marks का 80% करूं तो उसको 80 marks लाने पड़ेंगे. तो ये आ गया मेरा x. अब ऐसे कितने लोगों को डिस्टिंक्शन आया है? ऐसे कितने लोगों को डिस्टिंक्शन आया है? 15%. तो लिखो there are 15% of students. There are 15% of students scoring distinction. There are 15% of the students scoring distinction. So अगर मैं अपना probability calculate करूं तो 15% is 15 by 100 that is 15000. बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो यहां पर z is equal to 0. बेटा ये लोग डिस्टिंक्शन लाने वाले बंदे हैं. डिस्टिंक्शन लाने वाले मतलब इनको 80 से ज्यादा आ रहे होंगे ना. मिनिमम 80 आने पर डिस्टिंक्शन है तो इनको तो 80 से ज्यादा आए हैं. सो ये वाला एरिया ये दैट्स 1500. अच्छा ये 1500 रेफर करने से मिल जाएगा z का वैल्यू? नहीं. आई वांट द एरिया फ्रॉम 0 टू z1. So probability of 0 to Z1 is 0.5 minus 0.15 that is 0.3500. इसको भी हमने कोई प्रीवियस सब में रेफर किया है लेकिन फिर से कर लेना है. चलेगा? फिर से कर लेना है. कर लो. चलो फिर से कर लो. लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, एवरेज वैल्यू. फिर से रेफर कर लो. चलो 0.3485 3508 3496 1.02 04 1.035
But which is the nearest one? The average is the nearest one. So can I write down the value of Z1 is 1.305? The value of Z1 is 1.305. X minus mu upon sigma. 1.305. X is 80, mu I don't know, sigma I don't know. Cross multiply. 1.035 sigma is equal to 80 minus mu. So mu इधर आ जाएगा. Mu plus 1.03 sigma is equal to 80. That's my second equation. But trust me, I'm not gonna solve this two equation. You do it on your own. Yesterday you have seen how to use the elimination method, and we get the answer for mu and sigma. Please, everybody do it. I'm not gonna do. Come on. बेटा मैं कर रहा हूं. But is there the answer in point and all coming? Yes. That is why you a bit in you. I can see you a bit in dilemma. Mu plus 1.035 sigma is equal to 80. પછી mu minus 1.28 sigma is equal to 40. बट एलिमिनेट करने के लिए इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस. So बेटा mu and mu gets cut. कितना आ रही है? 2.315. That's equal to 40. So sigma is equal to 40 divided by 2.315. 17.28. 17.28. बेटा कोई टेंशन नहीं, घबराओ मत, ये सही जा रहे हैं हम. 17.28 और फिर कोई भी एक वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो एक इक्वेशन में. म्यू माइनस 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40. म्यू माइनस 1.28 इंटू 17.28 दैट्स इक्वल टू 40. So mu minus 1.28 into 17.28 22.12. That's equal to 40. So mu is 40 plus 22.12. 62.12. Beta mu is 62.12. हाँ तो बोलने ऐसा ऐसा गुस्से में क्यों देख रही है? बेटा 62.12, are you getting that? Now read the next line and find what they are asking. Come on your own. मैं नहीं करवाऊंगा. चलो करो. मेरे को म्यू मिल गया है, सिग्मा मिल गया है. आगे क्या पूछ रहे हैं? Determine the percentage marks for which 75% of the students have scored less than that percentage marks.
सर क्या पूछे हैं? बेटा हमको क्या पूछ रहे हैं देखो ना, I have to find out the percentage marks. I have to find out the percentage marks. Percentage marks for which 75% students, 75% of the students, 75% of the students have less than that percentage. मतलब हमको ये ढूंढना है कि कितने मार्क्स हैं 75% ऑफ स्टूडेंट्स के लेस वाले, लेस मतलब देखो ना, परसेंटेज मार्क्स फॉर विच 75% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेस देन दिस परसेंटेज, मतलब 75% से कितने कम है उसके मेरे को मार्क्स ढूंढने हैं। जैसे यहां पर जरा देखो, डिस्टिंक्शन लाना था तो 80% लाने थे तो 80 मार्क्स हुए। अभी यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि 75% आ रहे हैं, 75% तो कितने मार्क्स आने चाहिए कि जो 75% से लेस हैं, लेस हैं। Are you getting? How many marks? What's the marks? એટલે મારે આ x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, x એટલે પાછી વર્કિંગ કેવી રીતે જવી પડશે? x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, રિવર્સ વર્કિંગ કરવી પડે ને। અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયા ध्यान, અહીંયા ध्यान। बेटा 75% करूं तो 0.7500 ऐसा आता है। मैं 75% किधर आवे? इधर, इधर अगर 50 है तो राइट साइड आएगा 75 और अपने को ये लेस ढूंढने का, बराबर बराबर। ये पूरा एरिया कितना है? 0.75। यहाँ पर z इक्वल टू 0 है तो ये z1 की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये 0.5 है और ये 0.2500 है। हमको ये वाला एरिया ढूंढ के z1 मिल जाएगा तो हम फिर वो फॉर्मूला में रखेंगे z1 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन z। मेरे को मिल जाएगा, x नहीं है मेरे पास, नहीं है, वो ढूंढना है। म्यू है, सिग्मा है, तो म्यू और सिग्मा को रख के x ना मिल जाए। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूंगा। सर તમારી રોજ ચેકડા મારવાની આદત ખોટી છે। મેં કરી લીધેલો, હમણાં મારા નોટબુકમાં મેં આ ઘંટ બનાવી દીધેલો। बेटा अगेन आई से कि पेज नंबर 109 की थियरी तुमने नहीं पढ़ी है। परसेंटेज 75 और लेस, so can I write Q1 is 25%, median is 50%, Q3 is 75%। so ग्राफ क्यों बना रहा है मेरे भाई? सीधा ढूंढ ले, Q3 75%। सीधा हमको क्या ढूंढ लेना है? सो Q3 का फॉर्मूला, सर मुझे क्या पता, म्यू प्लस 0.675, 2 लाइन में आंसर। म्यू है तेरे पास? म्यू 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 62.12, 0.675। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा सिग्मा 17.28, तो 62.12 प्लस 11.66 तो कितना आ रहा है? 73.78। 75% बच्चों को ये मार्क्स से कम है, 73.78 से उनके मार्क्स कम हैं, ऐसा हमने ढूंढा। 75% बच्चों के मार्क्स 73.78 से कम हैं।
क्वेश्चन में ऐसा बोला था ढूंढने के लिए। जैसे तुम्हारे देखो सबके 80 के कम हैं, सो 80 से कम 75 स्टूडेंट्स, 75% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस देन 80। यहाँ पे 75% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस देन 73.78। बेटा आप पता चला थियरी पढ़ने का सिग्निफिकेंस, तुम ये सब बेल वेल बना के टाइम वेस्ट करोगे। अगर तुम्हारी थियरी पक्की है तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ओके, अब चले जाओ पेज 137 पर। बेटा पेज 137 पर चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। बेटा आपसे थोड़े ट्रिकी सम वापस और शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एक में सीधा देखो, एक में उल्टा देखो, ये सब आएगा। पढ़ो। बेटा पढ़ लो प्लीज। बेटा क्या बोल रहे हैं जरा पढ़ेंगे। 7th, it is known that on an average a person is spending 61 minutes in a painting exhibition। देखो on an average बोले तो क्या, म्यू, वेरी गुड। 61 minutes on an average वो पेंटिंग देख रहा है बंदा। If the time is normally distributed, 20% of the people 20% of the people spend less than 30 minutes। कितना, खाली 30 मिनट में ही पब्लिक निकल जा रही है। फाइंड वरायंस। फाइंड क्या करना है अपने को, and then after that also determine the probability that the person spends more than 90 minutes। वो बाद में देखते हैं हम, वो भी करेंगे हम। लेकिन ये वाले सम में क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, वरायंस। नाउ अगर तुमको मेरा वो रिवर्स वाला का नोट याद हो कि रिवर्स वर्किंग कब करने की क्या क्या मिसिंग हो, x सिग्मा, तो रिवर्स जाना पड़ेगा। अब अगर रिवर्स जाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, एरिया। सबसे पहले क्या चाहिए, वो कैसे मिलेगा देखो, 20% ऑफ द पीपल आर स्पेंडिंग लेस देन, तो ये 30 मिनट्स क्या है, 30 मिनट्स क्या है, बहुत बढ़िया, 30 मिनट्स है अपने x। तो इससे अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं 20%, सो 20 बाय 100 दैट इज 0.2000। फिर इसी का मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं। बेटा जरा बुद्धि चलाना, हाँ बहुत इजी है बुद्धि चलाना। मेरे को म्यू दे दिया है 61, तो कहना से 61 आ सेंटर में आवे। देखो ना, ऑन एन एवरेज नल्ले 61 मिनट स्पेंड कर रहे हैं ना पेंटिंग देख देख के, तो ये सेंटर पे रहेगा। तो कुछ लोग 30 मिनट्स में ही निकल गए, तो अगर 61 सेंटर में है तो 30 मिनट्स वाले कहां जाएंगे। हाँ समझ में आ रहा है Z1 कैसे मैंने उतारा, क्या सोच के उतारा। मेरे पास म्यू है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास म्यू, तो म्यू तो सेंटर में आता है, ये मेरे को पता है। और क्या क्या आता है सर सेंटर में, मीडियन। हाँ शाबाश शाबाश। तो Z1 बेटा यहां उतरेगा। अरे इन्होंने लेस देन करे हैं, लेस, सो दिस इज द एरिया 0.200000। मेरे को Z1 का वैल्यू ढूंढ के दो, मैं नहीं करूंगा। Z1 का वैल्यू फाइंड आउट करके दो।
Can I say I need area from 0 to Z1? 0.5 minus 0.2, that's 0.30000. Refer 0.300 in the area table. Reverse manner. So better tell me what's the left value, right value, and the average value. The left value, right value, and the average value. 2995. क्या आ रहा है बेटा? 2995. 0.2995. 3023. 3023. 3009. 0.84. 84. 85. Can I say the left value is the nearest one? जरा check करो. Yes. But the left value is the nearest one. So that's minus 0.84. X minus mu upon sigma. Minus 0.84. X क्या है बेटा? X. 30 minutes. Mu 61. Sigma I don't know. बेटा सिग्मा ऊपर चला जाएगा, माइनस 84 नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 30 माइनस 61. माइनस 31 अपॉन माइनस 0.84. 36.90. 36.90. ये सिग्मा आया. सिग्मा अपने को सिग्मा नहीं ढूंढने का था, अपने को वरायंस ढूंढना है बेटा. वरायंस. सो वरायंस इज 36.90 का स्क्वायर. 1361.61. तो बेटा रिवर्स वर्किंग करके हमने वरायंस फाइंड आउट कर लिया. बेटा ये सबको पता चला, रिवर्स वर्किंग करके वरायंस हमने ढूंढा. पता चल गया. आगे पढ़ो, और भी कुछ ढूंढना है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन स्पेंडिंग मोर देन 90 minutes. बेटा क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन स्पेंडिंग मोर देन 90 minutes. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. एक्स. ये रहा. ये 90 दिए तेरे को. एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. मेरे को एरिया ढूंढना है. जब भी बोले प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करो, परसेंटेज ऐसा फाइंड करो, तो बेटा सीधा सीधा देखने का है. मतलब देखो अब क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. फ्लैशबैक, मेमोरी रिकलेक्ट. जरा यहां ध्यान. मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब मुझे एरिया ढूंढना है. एरिया, और एरिया ढूंढना है स्पेंडिंग मोर देन कितना मिनट्स. तो ये x है बेटा. x. तो जरा याद करो, x को हम z में कन्वर्ट करते थे. क्या फॉर्मूला? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. 90 माइनस म्यू इज 61 अपॉन सिग्मा इज 36.90. कितना? अरे फाइनल आंसर देना होशियार. 0.79. 0.79. हर्षित बेटा चाइनीज कैलकुलेटर जरा कम वापरो ना. आया 0.79 हर्षित. अब जरा z की वैल्यू आ रही है 0.79. जरा बड़ा बचपन में फ्लैशबैक रिकलेक्ट, हम ऐसा एक वो इक्वेशन बनाते थे कि z आ गया 0.79. स्पेंडिंग मोर. इंग्लिश पढ़ के
हम कुछ ऐसा इक्वेशन बनाते थे, जरा याद करो। इनिशियल सम्स में सेम बेटा, सेम चीज। ये अब मेरे को ढूंढना है। सो ये अगर मेरे को ढूंढना है तो ये मेरा z 0 हो जाएगा। 0.79 है z का वैल्यू, तो कुठे राइट साइड। एंड आई वांट अ ग्रेटर एरिया, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। फाइंड सर कैसे करते थे ये वाला एरिया फाइंड, थर्ड वाला एरिया? कहने से पिच्चू से 0 से 79 का एरिया मिल जाएगा, और हम 0 से लेके इंफिनिटी का एरिया क्या करेंगे? माइनस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी माइनस 0.79। सो 0.5 माइनस 79 का सर कैसे देखने का? मेरे को तो 79 वाला एरिया मिल ही नहीं रहा है। अक्कल के दुश्मनों, 0.79 इधर मत ढूंढो, इधर से z ऐसे ढूंढने का है। 79 2852 बेटा 2852 सर बद्दू हो गए कितना? 2148। बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बेटा प्रोबेबिलिटी। बेटा समझ में आया ये सीधा वाला वर्किंग का? कुछ याद आया? सीधा वाला वर्किंग है ये रिवर्स है। सर रिवर्स क्यों किए थे यहाँ पर? सिग्मा ढूंढने का था। सीधा सीधा क्यों करा तुमने? प्रोबेबिलिटी ढूंढने की थी। सर ऐसे सम आ सकते हैं? ऐसे ही आने चाहिए ना, कि जहां पर एक रिवर्स देख लो, एक सीधा देख लो, मतलब पता चल गया तुमको चैप्टर आ रहा है कि नहीं। व्हाट से? अच्छा नेक्स्ट वाला सम मजा वाँचो। जो तो रिवर्स જવાનું છે કે સીધું જવાનું છે કે બંને જવાનું છે? 8th वाला सम मार्केट इंपॉर्टेंट। 8th वाला सम मार्केट इंपॉर्टेंट। चेक करो बेटा, सीधा जाना है उल्टा जाना है? सर मुझे घर जाना है। सर ये सीधे उल्टे में जो बगवाहट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है साला क्या करना है। But anybody ready with the answer? No sir, never sir. But let's read. बड़ा इंपॉर्टेंट सा मार्क कर लिया तुमने। The diameter of the pipe produced by a company manufacturing pipe is 20 mm to 22 mm. Then it is accepted by the group of customer. The standard deviation of the pipe is 4 mm. It is known that 70% of the pipe produced in the unit have a diameter more than 75% of the pipes produced having a diameter more than 19.05
Find the average diameter. Average. Find average. Mu. बेटा म्यू फाइंड करना है, कैसे करूंगा? रिवर्स तो करेंगे। आगे भी फिर कुछ बोले हैं, ऑल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज। वो सीधा करना पड़ेगा, लेकिन वो सीधा तभी हो पाएगा, पहले क्या ढूंढना पड़े? म्यू। चलो ढूंढते हैं म्यू। अच्छा मेरे को सिग्मा बताओ, कितना mm है सिग्मा? 4 mm। बेटा म्यू इज मिसिंग, बराबर है। अच्छा कितने परसेंट पाइप का डायमीटर कितने से कम है? देखो तो मोर है 70% of the pipes have a diameter more than 19.19 they have a diameter more than 19.05 mm। तो बेटा ये जो 19.05 दिया है वो क्या है? Yes, 19.05 given is our x and 70% of the pipe बोले हैं बेटा, 70% of the pipe, so probability is 70% which is 70 by 100 which is 0.70000। बेटा मेरे को इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है ना बेटा। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ये 0.700 जो मेरे को ग्राफ में दिखाना है, Z1 कहां उतारूं, लेफ्ट में कि राइट में? Sir, we are about to complete the chapter and I just don't know where will I drop my Z1? Right side, everybody? Everybody? That's absolutely wrong answer. मेरे को Z1 ऐसी जगह पर उतारना है जहां से मैं मोर जाऊं और इतना एरिया होना चाहिए। I want to put Z1 that side कि जहां से हम मोर चले, मोर, तो वहां पर 0.7000 ऐसा आना चाहिए। तो बेटा लेफ्ट में उतरेगा, यहाँ इधर, और यहां से मोर। कैसे गधे? ऐसा कहां लिखा है डायमीटर इज लेस देन 19.05? अगर लेस लिखा होता तो तुमने जो कहा वो बराबर है, लेकिन यहाँ मोर लिखा है और एरिया भी तो देखो। सो इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा ये Z1 कैसे मिलेगा? ये 0 से इंफिनिटी है 0.5, तो ये 0 से Z1 कितना आएगा? क्या? 0.7 minus 0.5, that's 0.20000। रेफर करिए, रेफर 0.2000 in the area table in reverse manner. So I'll have a left value, right value, and I'll get the average value. But what's the left value? 0.1985. Right value? 2019. 2002. 0.52. बड़ा कयो नजीक छे? Average is the nearest one.
बेटा बट दैट विल बी नेगेटिव आंसर. चेक करो. Z1 will be minus 0.525. X minus mu upon sigma minus 0.525 X 19.05 mu I don't know sigma 4. But please cross the multiplies and tries. minus 2.1. But cross the multiplies and tries. हाँ जी कितना है बेटा? 1.15. Minus 21 point minus 2.1. 2.1. 19.05 माइनस म्यू. ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा. 21.15. 15. बहुत बढ़िया बेटा. अपना म्यू झाले. म्यू आ गया. आगे अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, मजा आएगा. परसेंटेज ऑफ द पाइप्स बीइंग रिजेक्टेड. बेटा मैं लिख रहा हूं पहले इंग्लिश में. परसेंटेज ऑफ पाइप्स बीइंग रिजेक्टेड by specified customers. मतलब मेरे को ढूंढना क्या है, यहां पर ढूंढना क्या है कि कितने परसेंटेज ऑफ पाइप्स थे जो स्पेसिफाइड कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए. रिजेक्ट. अब मेरे को स्टार्टिंग लाइन में जरा पढ़ के बताओ, वो एक्सेप्ट कब करते? They accept the pipe if the diameter is between 20 mm से लेके ये mm के बीच में अगर पाइप है तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं. अगर ऐसा डायामीटर नहीं है तो वो उन्हें क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे. सो हम क्या करते हैं बेटा, स्मार्ट वे में आंसर लेके आते हैं. वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका हमको इंफॉर्मेशन दिया है, तो वही इंफॉर्मेशन से हम पहले ढूंढ लेते हैं कि वो कितना एक्सेप्ट करेंगे. અને પછી બેટા मैं તમને प्रोबेबिलिटी ना चैप्टर में सिखाड़ू छे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ये जो एक्सेप्ट का आंसर आएगा उसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिजेक्ट होने का. लेकिन मुझे ढूंढना क्या है? कैसे करने का? परसेंटेज सीधा वर्गी एरिया ढूंढना पड़ेगा. तो एरिया अगर ढूंढना है तो ये मेरे पास 20 and 22 mm है. ये मेरे x है जिनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो 20 से बेटा. सो म्यू 21.15 सिग्मा 4. सो माइनस में कुछ आंसर आ रहा है, चेक करो. माइनस 0.29. ओके. इकडे 22 છે. माइनस 21.15 अपॉन 4. इधर भी 29 21 पॉजिटिव. लेकिन बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मेजरमेंट के बीच में तो क्या होगा? पाइप एक्सेप्ट. तो लेकिन ढूंढ तो लेते हैं एक्सेप्ट का, પછી એનું શું ફાઇન્ડ કરી લેશું આપણે? ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરીઝ.
तो बेटा इक्वेशन कैसे बनेगा, मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, कहना से मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.29 से लेके 0.21 के बीच की, इन बिटवीन। सो मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, z इक्वल टू 0, यहां पर z1 इज -0.29, इकडे इट इज 0.21। जरा याद करो, मैं तुमको पूछता था बचपन में 1 2 3 4 विच एरिया, तो आई हैव टू कैलकुलेट हियर 2 and 3। तो पिच्चू से तुम इसका एरिया फाइंड करके दोनों को प्लस कर दो। बेटा दोनों का एरिया फाइंड आउट करके प्लस कर दो। बेटा व्हाट्स द फाइनल आंसर, यहाँ का कितना आ रहा है एक्सेप्ट करने का? 0.1973। पॉइंट कितना आ रहा है? 1973। कहना से ये जो आया वो तो एक्सेप्ट करने वाला है ना, सो फिर लिखो therefore probability that specified customer reject the pipes, so it will be 1 minus 0.1973, 0.8027। अब बेटा मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करना है, I have to find out the percentage। Therefore percentage कैसे आएगा? 0.8027 into 100, 80.27%. The answer will be 80.27%. बेटा सम समझ में झाले, एक सीधा एक उल्टा। The last sum for today, 10th वाला सम करो, 10th वाला इजी है 10th। You want to try? हाँ? बेटा what a new year resolution, it is just like the last year. If anything has to be done on your own, no, never. बेटा उसमें देखो तो सही, x ढूंढना है, x, so I have to do it by which way? Yeah. પણ સર કરી જ દો ને તમે,
કેમ કે તમે અમને કહેશો ને તો અમે વાર્તા કરી બેસીશું. अच्छा, वहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है. देखो जरा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. अच्छा, उस फॉर्मूला को देखकर क्या मैं म्यू और सिग्मा फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या है बेटा? म्यू और सिग्मा 1/50 √2 पाई e raised to minus half. तो व्हाट इज माय म्यू? 150. या सबको फॉर्मूला याद है यार. અને સિગ્મા 50. ओहो हो, आंख में पानी आ गए सुन के. x1 less than x less than 250 is 4772. मेरे को x1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कुछ अच्छा बोल रहे हैं? देखो जरा, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ मैं कर रहा हूं. इधर समझो. क्या से ये x की वैल्यू मुझे ढूंढनी है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो x दिया है क्या मैं उसको z में कन्वर्ट कर सकता हूं? कौन सा फॉर्मूला लगा के? सो इसको हम ये x1 को मैं z1 कर देता हूं, लेस देन ये x को हम z ले लेते हैं एरिया, लेस देन ये जो है उसको z2 में कन्वर्ट करेंगे. कौन सा फॉर्मूला लगा के? x minus mu upon sigma. So this is 250 minus 150 upon 50. So probability of z1 less than z less than, ये कितना आ रहा है? 2, and that's 4772. अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, खबर पड़ी बेटा? चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन of x to z, the transformation. Have you understood? Now let's try to plot these things on the graph. बेटा सेंटर में तो 0 આવશે. આ z1 ક્યાં જશે એ હજી આપણને ખબર. Keep it pending, keep it pending. 2 कहां जाएगा? 2. z is equal to 2. बराबर है. अब अगर ध्यान से हम अगर पढ़े z1 से लेके 2 तक के बीच का एरिया कितना है? 4772. बराबर है. तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये z1 को कहां उतारूं, मेरे को पता नहीं चलेगा. ऐसा भी हो सकता है यहां पर उतर सके, ऐसा भी हो सकता है ये लेफ्ट में उतर सके, ऐसा भी हो सकता है सेंटर में उतर सके. तो वो कहां उतरेगा वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा. पहले मेरे को 0 से लेके 2 तक का एरिया पिच्चू से ढूंढ के दो. 0 से लेके 2 तक का एरिया. Can I say this itself is 4772. तो can I say मेरा Z1 कहां उतरेगा? Can I say Z1 भी यहीं उतरेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. क्योंकि सेंटर में अगर उतर रहा है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. अपने को z नहीं ढूंढना है, अपने को x ढूंढना है. तो अब एक बार z मिल गया which is equal to what? So मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x minus mu upon sigma. तो z is equal to 0. x क्या है मेरा पता नहीं, mu है मेरा 150, सिग्मा है 50, 50 into 0 is 0. तो x minus 150 is 0. तो x will be equal to 150. बेटा समझ में आया z कैसे हमने लैंड किया? बेटा z, बेटा इसका लैंडिंग ये एरिया पर डिपेंड कर रहा है, अपना एरिया पे. ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सेकंड वाले सम में आएगी तुमको, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग. इस वाले में तो अभी थकान की वजह से उतार दिया सेंटर पे, लेकिन दूसरे वाले सम में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. पढ़ो जरा सेकंड वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 लेस देन x लेस देन
x2 इज इक्वल टू कितना 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 0.35। बेटा वापस क्या करेंगे, ये x को कन्वर्ट कर दो z में, तो z में कैसे कन्वर्ट होगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन z, और ये z2 को हम x2 को z2 लिख देंगे। तो 75 माइनस 150 अपॉन 50 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z2। कितना आ रहा है, माइनस 1.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z2, and that's equal to 3539, that's equal to 3539। बड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम करें तो बड़ा माइनस 1.5 कुछ है, माइनस 1.5 विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखो बेटा मेरी तकलीफ जरा समझो, तकलीफ ये Z2 कहां उतरेगा अपने को भी पता नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करने का, पहले पिक्चू से 0 से लेके 1.5 का एरिया बताओ कितना आ रहा है, यहां से लेके ये पूरा एरिया आ रहा है 4332 ने हमें कितना एरिया दिया है 3539। तो बेटा 0 से लेके यहां तक का एरिया है 4332 एंड 1.5 से लेके Z2 के बीच का एरिया कितना है 3539। तो कहना इसे Z1 यहां मेरे को उतारना पड़ेगा, मेरा Z2 यहां पर उतरेगा, और ये वाला इन दोनों के बीच का एरिया 3539 कहना से हम जस्टिफाई कर पाएंगे, કેમ કે અહીંથી લઈને અહીં સુધીનો એરિયા 4332 છે અને આનો ને આનો એરિયા 35, તો એ આની પહેલા જ અહીંયા જ ઉતરી જશે। बेटा ये वाले एरिया पर से मैं डिसाइड करूंगा कि Z2 कहां उतरेगा। ये एरिया पर से 1.5 का एरिया अगर 2500 होता, मान लो 2500, तो मैं Z2 यहां उतार लेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया इतना रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पर ये Z2 ऐसे उतरेगा। अब जरा मुझे बताओ Z2 की वैल्यू अगर मेरे को ढूंढनी है, Z2 की वैल्यू, so I want this area, 0 से लेके Z2 का एरिया, so वो कैसे मिलेगा 0.4332 में से 3539 माइनस कर दो, 0.0793। कितना रहे 0.0793। तो Z2 का वैल्यू आया माइनस 0.20, इट्स माइनस 0.20, लेकिन ये Z आया X नहीं, X कैसे मिलेगा, X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 0.20, X क्या है खबर नहीं, म्यू 150 सिग्मा इस 50। ये कितना आ रहा है माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 150 140। That's my answer 140। बेटा आज ना होमवर्क में आ बदा सम रिपीट टेलीकास्ट फिर से घर जाके दोबारा करना पड़ेगा, खास करके ये वाला सम कहाँ ZX कन्वर्ट करके हमने उतारा। પછી सेक्शन F का सम नंबर 1, सेक्शन F सम नंबर 1, उसमें 2 बार सीधा देखना है, लास्ट बार रिवर्स देखना है। हिंट दे रहा हूं मैं तुमको, 2 टाइम्स
proper order. Third time, reverse. Then on page 139, sum number 7. It is similar to this type. हमने जो अभी करा सम नंबर 7 उसके जैसा है, तुमको करने का है. नहीं होगा तो कल मैं करवा दूंगा. Are you getting it? तो इतने सम होमवर्क में करो प्लस द रिपीट टेलीकास्ट. ओके